Am I audible? Afternoon, ma'am. Am I fully audible and visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Okay. So I welcome you to the session of 21st Century Skills, which is very, very important in the present vogue. So first of all, we would like to begin with that. What are skills? आप स्किल से क्या समझते हैं? We can chat या हम unmute करके भी reply कर सकते हैं. So chat में लिख देंगे तो मैं सबका पढ़ लूंगी, है ना? और साथ साथ में हम कन्वर्स कर सकते हैं. स्किल हम किसको कहते हैं? What do we understand by skill? Okay. नहीं, आप इसको छोड़िए. आप कौन से स्कूल से हैं? वो आप अटेंडेंस शीट में आ जाएगा. आप ये बताइए, what do we understand by skills? Ma'am, it's like a talent which we need to do for job. Yeah, wonderful. Lot many answers have come. Ability to do something, ability to adapt, doing something with expertise. Wonderful. Skill is, like learning by doing, definitely. So skill is nothing but a particular way to do a thing, right? So particularly doing a thing in a way is a skill, right? So अब आप मुझे एक छोटा सा ये बात बताइए, स्किल जरूरत क्यों है हमें लाइफ में? Why do we need skill? Why do we need skill? Okay, I'll give you the answer. The skill is required for doing things quickly. Skill is required. Neetu ji has written to do our work efficiently and to make tasks easy and to stay updated in the area to track the challenges. Wonderful. Here is one of the answers which Dolly ji has given and Vibha ji has written. Find new way of thinking. Wonderful. So इसी से हम लेते better efficacy. So let's pick up another thing. Why do we need to do the things in a better way? What are those challenges which we face? हमें एक as a teacher हमें क्या-क्या challenges आते हैं? What challenges are that we to grow and wonderful. Bharti ji has written हमें growth लेना होता है और हमें critically think करना पड़ता है. Lack of knowledge about wonderful. Neetu ji has written this is an outcome of pandemic that technology is a big challenge for us. Yes, so we need to develop a skill. To stay updated, Kumar Gaur ji has written, हमें update रहना पड़ता है, वो हमारा challenge है. Good. So let me take up the two questions which I was asking. मैं इसको wind up करके then we would be pushing ahead. Yeah, rigidity of attitude, wonderful. Neetu ji has given कि rigidity है हमारे अंदर. So as a human being, as a person, हमें क्या-क्या challenge आते हैं? चैलेंज एज अ टीचर सबसे पहले हमारा आता है कि हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड नहीं है. आप ही ने बताया है, मैं उसी को अपडेट कर रही हूँ, राइट? हमें नए आइडियाज को शेयर करने में प्रॉब्लम आती है. हमारे एटीट्यूड में रिजिडिटी है. हमारा लैक ऑफ नॉलेज है. हमें कोई एटीट्यूडनल बिहेवियर्स की प्रॉब्लम आती है. और अगर मैं देखूं एज अ टीचर, पेंडेमिक में अगर टेक्नोलॉजी का चैलेंज आया तो बच्चों के बिहेवियरल चैलेंज आते हैं. स्लो लर्नर्स हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रोट लर्निंग कर रहे हैं. बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रोट लर्निंग नहीं कर पा रहे, उनको अंडरस्टैंडिंग है. बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं बट उनको रीडिंग राइटिंग की प्रॉब्लम है, राइट? देन ऑफ कोर्स देयर इज अ लैक ऑफ पर्सनल टच दैट इज रिक्वायर्ड. तो ये 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है? अगर आज अभी हमने ये डिस्कस किया व्हाट आर स्किल्स, देन वी सेड कि स्किल का मतलब है कि हम किसी भी चीज को बहुत
एफिशिएंटली कर लें। तो एफिशिएंटली करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम देखते हैं हर जगह जो हम काम करते हैं कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी तरह का चैलेंज आता है। उस चैलेंज को सरमाउंट करने के लिए हमारी चेंज नेचर जो है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हमारे पास ऑल्टरनेटिव होने चाहिए, हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, और इस चीज को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह की स्किल्स होनी चाहिए जो कि हम ओल्ड टू न्यू में ले जाए, जो हम चेंजिंग टाइम्स में enhance करें उस चीज को कि we can bring the changes more quickly. Yes, Mansi ji has written to change along with the changing environment. Yeah, adaptation. This is what I was saying. Adaptation is very important. So adapt के बारे में skill है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि I am too गिविंग इन कि अच्छा आपने बोला चेंज करना है तो मैं फटाफट चेंज कर लेता हूँ. ओके, लेट मी गो टू गूगल अंकल एंड पी इट. ये भी स्किल है. सो नकल भी कैसे मारनी है अकल से, दिस इज ऑल्सो स्किल. सो इफ आई गेट एन आइडिया एंड इफ आई एम गोइंग बाय इन अ मल्टीपल वेज, वो भी एक स्किल है. सो क्रिएटिविटी भी स्किल है. मैं एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया करती हूँ अपने चाइल्डहुड की. एक बार पेंटिंग का कंपटीशन था, सो आई वाज अपीयरिंग इन दैट कैमलिन पेंटिंग कंपटीशन में मैं अपीयर हो रही थी, और उन्होंने बोला कि आप एक सीनरी बनाएंगे. सीनरी आती थी बनानी, तो मुझे लगा कि ये तो सब बच्चे ऐसे ही बनाएंगे. मैंने कहा चलो ऐसे ही करते हैं, पानी पी के आया जाए. सो आई जस्ट गॉट अप फ्रॉम द प्लेस वेयर आई वाज making a painting, and I just went around. So where I went around, I found one girl was making a painting जिसमें एक clay बनाई थी जो कि मटका उठाकर जा रही थी, और वही उसका मेन फोकस था. मुझे लगा इसका मतलब सीनरी में ये कोई जरूरी नहीं है कि मुझे पहाड़ ही बनाने हैं, बर्ड्स ही बनाने हैं, हट बनाना है, रिवर बनाना है और वेल बनाना है. Let me create a figure of maybe that of the farmer, or maybe that of a woman who is carrying a picture on her head. Maybe I have to draw some jungle. I think that's a scenery, and I really don't clearly remember मैंने क्या बनाया था, पर मुझे इतना याद है कि I picked up that idea from that person and created a painting for that, and probably I only remember that I got a certificate of consolation prize for that. So it had the thinking skill. So I think if all of us, I don't mean to say that I was too intelligent to understand कि वो क्या कर रहे हैं, or I was good. No, not at all. I'm simply saying skill of copying the things, skill of generating the ideas, critically thinking, and of course जो skills हैं 21st century की skills क्या हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. So मैं I will be taking help of a PPT today, और उसमें कुछ पहले तो हम 21st century skills के बारे में बात करेंगे जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया हुआ है, क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज ऑल सेंटर्ड अराउंड द 21st century skills, राइट. सो जो 21st century skills हैं उसका जो मेन थीम है वो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग के आसपास केंद्रित है. कोई भी मुझे अनम्यूट करके बताएगा कि जो 21st century skills है उस पे हमारी क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? कोई भी प्लीज क्विकली, so that we have lot of things to talk about it. So let's not waste our time, and please share that with me quickly. All of you. Am I audible, friends? Yes, ma'am. I think the critical thinking will help us to, as I said, to help us to adapt with the changing environment and give us better ideas how to develop our skills, in a better way, in a successful manner, so a productive manner rather. Yeah. So I think जो हम critical और creative think करते हैं, that talks we become more productive in life, और कुछ भी नहीं है. प्रोडक्टिव का मतलब है कि मैं क्रिटिकली सोचूं और क्रिएटिवली उस चीज को क्रिएट करूं, या मैं क्रिएटिवली सोचूं और क्रिटिकली उस चीज को क्रिएट करूं. सो इट कैन बी अ कुकरी item, it can be a stitching, it can be an experiment, or it can be anything. So Darwin ने ये बोला, it's not the strongest of species that survives, not the most intelligent that survives, but it's the one that most survive is adaptable. So I hope you are all clear. जो व्यक्ति समय के साथ चेंज हो रहा है, एडेप्टेबल है, वही इंसान सक्सेसफुल है. और माय डियर टीचर्स, 21st century skills हम बच्चों को तभी पढ़ा सकते हैं अगर हमें खुद 21st century skills का
अपग्रेडेशन और नॉलेज है। सो 20th सेंचुरी स्किल्स को बड़ा मुश्किल है कंसाइज में करना, बट फिर अभी हम इसको ब्रॉडली कर सकते हैं कि जो कोई हमें नॉलेज है, जब उसको हमारे वर्क हैबिट्स में आ जाती है, हैबिट से वो हमारे करेक्टर में चेंज हो जाती है, और करेक्टर में चेंज हो जाने के बाद हम फॉर एवर हम क्रिटिकली सोचकर एक सक्सेसफुल वर्ल्ड में अपना एक प्लेस बना लेते हैं, being a successful. So 21st century skills are nothing, but it is a broad spectrum of the skills, work habits, the character traits which develop, and they are basically formed in the school, and they are being formed by the teachers, professors, and everywhere you think that these skills play the vital role. अब सबसे पहले सिचुएशन ये है कि 21st century skills जो थी ये कहाँ से आई, तो कुछ मैंने क्विकली आपके लिए एक हिस्टोरिकल स्लाइड बनाई है कि जो डैलर्स रिपोर्ट थी वो सबसे पहले आई थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता है, उसको करके देखना बड़ा जरूरी होता है, और जब हम करते हैं तो उसको अपनी लाइफ की कनेक्टिविटी, लिविंग के साथ कनेक्ट करना जरूरी होता है। ये डैलर्स रिपोर्ट आई थी। फिर WHO ने, आपको पता है लाइफ स्किल्स, जब हमारा CCE आया, लाइफ स्किल्स वर गिवन अ बिग सपोर्ट ऑफ दैट। और आपको पता है लाइफ स्किल्स क्या थी, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग था, क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग था, कम्युनिकेशन था, इंटरपर्सनल स्किल, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, कोपिंग विद द स्ट्रेस था। सो देखिए हिस्टोरिकल में बेसिकली क्या कहा गया कि डैलर्स रिपोर्ट ने कहा कि नॉलेज 2 2s are 4 is not sufficient. It has to be understood how it is taking place, and then we have to connect 2 2s are 4 with the day-to-day functioning of the child going to the market, buying a thing. And WHO said कि पैसा खर्च करने की भी स्किल होनी चाहिए। अगर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो बच्चा क्रिटिकली सोचे कि मुझे टॉफी लेनी है कि पेंसिल लेनी है, फिर वो शॉपकीपर को कम्युनिकेट कर पा रहा है क्या, अगर उसको कोई चीट कर पा रहा है और बच्चे को पता है ये चीट कर पा रहा है, तो क्या बच्चे में इतनी कैपेसिटी है किसी को नो का नो बोलने की, कि यस का यस बोलने के लिए? क्या बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ स्ट्रेस में तो नहीं है? क्या वो बच्चा दूसरे से एम्पैथी कर रहा है? अगर वो 2 2s are 4 रुपीज है उसके पास किसी भी तरह से, तो क्या वो एम्पैथेटिक वे में खर्च कर रहा है कि ही इज ओनली स्पेंडिंग ऑन हिमसेल्फ? Is he able to cope with the stress of the results? Is he able to cope with the stress that he only has 4 rupees and he has to buy 6 things with it? What is he doing? हो सकता है कुछ बच्चे बोले कि हम मम्मी पापा की पॉकेट में से और पैसे निकाल लेंगे। So बच्चे का coping with the stress की टेक्निक है, is it right? Is it okay? So it all depends upon how are you managing with the given situation. And then comes the OECD. This is this is another definition of 21st century skills, which says that to make children more competent in the new world, right? तो जितने हमारे OECD countries हैं, उन्होंने कहा 3 मेजर डायमेंशंस हमें बच्चों के लिए बहुत जरूरी चाहिए। एक बच्चे को कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए, एक बच्चे को इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पर यूज करनी है, और बच्चा एक एथिक्स और सोशल इम्पैक्ट पे जरूर काम करे। सो अगर देखो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इनको मिला लेंगे तो आपके क्लियर कट आ जाएगा कि एजुकेशन वाज रिलेटेड नॉट ओनली एन एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, बट इट वाज एक्यूमुलेटेड टू लर्निंग बाय डूइंग इट, एंड लर्निंग बाय डूइंग हैड सर्टेन स्किल्स इन इट। That was the communication, that is the information retrieval, मैंने कौन सी information कहाँ use करनी है society में, and I have to be ethical. तो इसी तरह से कुछ और definitions हैं, UNESCO की है, ATCS की है, और P21 nations की है। उन्होंने भी कहा learning and innovative skills है, उन्होंने मीडिया एंड टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कर दिया। ATCS ने कहा कि वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्किंग, टूल्स ऑफ वर्किंग एंड लिविंग इन द वर्ल्ड। और यूनेस्को ने क्या बोला कि भाई इन सबको आप इकट्ठा कर दो, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव इज 21st century skills. So मैं यहाँ पर बिफोर डिफाइनिंग एंड कंक्लूडिंग व्हाट आर 21st century skills, अगर हम इन सब दोनों स्लाइड्स को फिर से ज्वाइन करें तो आप देखिए 21st century skills are the life skills also, 21st century skills are the experiential learning also, 21st century skills are the social skills also, they are about the information retrieval also, they are about the career options also, they are about the tools of working and living in the world also, and finally, and the most important, what UNESCO says,
I am learning to know, learning to do, and learning to live happy. So happiness quotient is the main criteria behind the 21st century skills. So चलिए अब हम सबसे पहले, जैसे कि यूनेस्को ने बोला है लर्निंग स्किल्स हमारी क्या है, 4 C's. So अगर आप अपने 21st century skills को totally gist में लेना चाहते हैं, so you would say 21st century skills are nothing but 4 C's, IMT and flips. Repeat in your mind, 21st century skills are 4 C's, IMT and flips. These are the abbreviations which you can use. आपको 4 C's का अच्छे से पता है, अभी बताया. Critical thinking, creative thinking, communication, collaboration, cooperation. IMT is, information, media, technology, flips. So we will be discussing all these 21st century skills in detail. So let me take again a detailed slide of what are the learning skills. Learning skills जो है, जो हमने सीखना है, जो हमने बच्चों को सिखाना है, वो है critical क्रिटिकल थिंकर हूं, मेरे में ये क्वालिटीज होंगी, आउटकम्स. और अगर मैं क्रिएटिव और इनोवेटिव हूं तो मेरे में ये क्वालिटीज होंगी, आउटकम्स. और अगर मैं कोलैबोरेटिव हूं तो मैं अडेप्टेबल हूं, मैं औरों के साथ डाइवर्स सिनेरियो में काम कर सकती हूं, एंड आई एम एबल टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कम्युनिकेशन, आई एम एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली विद अदर्स. देन IMT, मुझे इंफॉर्मेशन लिटरेसी पूरी है, मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, मुझे आरोग्य सेतु ऐप कौन सा है, कितने एप्स हैं, उसमें मुझे किस तरह की लिटरेसी, मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी भी चाहिए, मुझे फूड एंड टेक्नोलॉजी, कितने सब्जेक्ट्स 8th के बाद इंट्रोड्यूस किए गए हैं. और 6th to 8th उन्होंने कहा कि बच्चे इंटर्नशिप करेंगे. पहले हम सुना करते थे कि फॉरेन कंट्री में बच्चे इंटर्नशिप करते हैं जी गर्मियों में, तो यहाँ पर भी हमें यही बोला गया है कि 6वीं 7वीं 8वीं के बीच में आपने 3 महीने की इंटर्नशिप करनी है, लाइफ की, वर्क एक्सपीरियंस की. वो चाहे आप किसी दर्जी की दुकान पर जा रहे हैं, या आप किसी कुक हाउस में जा रहे हैं, या आप किसी हाउस कीपिंग वाले के पास जा रहे हैं, आपने उतने घंटे पूरे करने हैं. फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी. If I am flexible, I am ready to do anything and anywhere. ये learning outcome है. Leadership and responsibility. Lead while guiding and responsible, be responsible for everyone. So productivity and accountability. I am productivity का मतलब है मैं 11th 12th में पहुंच गया. I am able to write projects and I am able to analyze and give the results. I am a critical thinker and I am accountable for what work. Social. I am working for the social cause and I am an effective communicator. So questions a critical thinker asks. What's happening? Why is it important? So मैं critical thinker के लिए 3 चीजें use करती हूँ. What is this? Number 1. Why is this happening? And how is this happening? सबसे पहले कहते हैं what. हम कहते हैं कि ये 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं. What? Then comes why. हम कहते हैं ये लड़ रहे हैं क्योंकि एक को लगता है कि दूसरे ने मेरी पेंसिल उठा ली. और how? लड़ कैसे रहे हैं, एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं, ये बात गलत है. So how to resolve this problem? Would you counsel children, or would you tell them that honesty is the best policy, or would you tell them to just go to a counselor, or you just punish both of them, or you seek suggestion from the class? How is the most important part that we have to do being the critical thinkers. So my dear friends, I'm going to share a few wonderful activities जो कि अभी एक सवाल शुरू में ही किसी सज्जन ने पूछा था, मुझे उनका नाम नहीं पता है, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था. और मैं अभी आपको क्विकली जितनी भी मेरी 21st century skills हैं, the time is left around 10 minutes पड़े हैं, मैं 10 मिनट में आपको सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं उसके बारे में अपडेट करूंगी. तो सबसे पहले है अदला बदली. अदला बदली में क्या होता है कि बच्चे कहते हो आप लिखो यू लाइक एप्पल और दूसरे को बोलो कि यू लाइक ऑरेंज, व्हाई. और जब बच्चे प्रेजेंट करने लगे उनकी अदला बदली कर दीजिए. उसको बोलो कि बेटा तुम एप्पल पे बोलो, तुम ऑरेंज पे बोलो. ये बच्चा क्रिटिकल थिंकर बनता है. आस्क योरसेल्फ मेड क्वेश्चंस.
बच्चे को बोलो ये पैराग्राफ पढ़ो, इसमें से क्वेश्चंस बनाओ। जैसे अभी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैडम ये कौन सी एज पर करना है, ये मेड क्वेश्चन था। ये गिवन वर्कशॉप के अंदर इन्होंने क्वेश्चन क्रिएट किया है, गोलमाल, ठीक है। गोलमोल में आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इस पे थ्योरी के ऊपर रिडल्स बना सकते हैं। वो है ना एक गाना, तीतर के दो आगे तीतर, आगे पीछे तीतर, पीछे बोलो कितने तीतर। तो आप मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, आप बच्चों को हंटिंग ट्रेयर करवा सकते हैं। बच्चे क्रिटिकली थिंक करते हैं। गैप फिल इन, गैप फिल इन में क्या होता है कि एक पिक्चर बच्चों को दिखाते हैं, उनको कहते हैं बेटा ये आपको क्या लग रहा है, व्हाट हैज हैपेंड, और लास्ट में लिखो कि आपको क्या लगता है इसका अंत क्या होगा। और फिर बच्चों को बोलो गैप फिल लिखो, आपने ऐसा क्यों सोचा, आप स्टोरी लिखो, व्हाई डिड यू थिंक लाइक दिस, एंड व्हेन द चाइल्ड थिंक व्हाई डिड आई थिंक दैट, बच्चा अपने आप करेगा कि मैंने जल्दबाजी में टाइटल लिख दिया, जल्दबाजी में मैंने थीम लिख दिया। और इसी को कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं इंग्लिश और हिंदी का। फिर आता है पूछो तो समझे, सॉरी इफ द स्पेलिंग्स आर लिटिल अपसाइड डाउन, पूछो तो समझे, क्रॉस क्वेश्चनिंग। So this is an extended version of ask a question, present yourself। मान लो कि मैंने क्लास के अंदर बच्चों को बताया, मैं बारिश के बारे में बोल रही हूँ, लास्ट वाला पूछो तो समझे। तो एक बारिश के ऊपर में बच्चा बोल रहा है और बाकी बच्चों को कहा जाता है अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो आपने 10 क्वेश्चंस बनाने हैं बारिश के ऊपर, राइट। नाउ आई एम टेकिंग अप अनदर स्किल, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। व्हाट आर क्रिएटिविटी स्किल्स, ठीक है। अब इसमें क्यूरियोसिटी, इंक्वायर एंड ऑब्जर्व, राइट। सो आप किसी भी तरह से बच्चों को बोलिए कि इंक्वायर एंड ऑब्जर्व, कोई भी चीज आप दिखा दीजिए। आप फिश ले जाइए क्लास में, अब बच्चे बोले ये क्या है, इंग्लिश की क्लास है, आप फिश ले जाइए क्लास में, अपनी साइंस लेबोरेटरी में से मॉडल ले जाइए, लाइव तो फिश रखना अलाउड ही नहीं है एज पर द नॉर्म्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट बना हुआ है। तो आप ले जाइए, बच्चों को दिखाइए और बच्चों को बोलिए व्हाट इज दिस। बच्चे बोलेंगे फिश, फिर बोलो ये कौन सी फिश है, फिश किस में होती है। अगर वो हिंदी की क्लास है तो हिंदी में वार्तालाप कीजिए, इंग्लिश की है तो इंग्लिश में कीजिए, पंजाबी की है पंजाबी में कीजिए, मलयालम है तो मलयालम कीजिए। इंक्वायर, ऑब्जर्व, रिसर्च। और अगर हो सकता है वो इंग्लिश की क्लास नहीं है, वो क्लास आपकी साइंस की है, तो आप बच्चों को कहेंगे चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिश, और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेडिटेरियन फिश। तो ये जो फिश है ये मेडिटेरियन फिश नहीं है, ये तो बेटा एक मॉडल है। तो क्यूरियोसिटी कीजिए, ओपन माइंडेडनेस, लिसन, थिंक डिफरेंटली एंड एक्सप्लोर। तो इसमें आप बच्चों को ये क्रिएटिविटी को इनहेंस करता है, ओपन माइंडेडनेस, लिसन, थिंक डिफरेंटली एंड एक्सप्लोर। तो अगर आप बच्चों को एक सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, अगर आप बीच के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उनको बोलिए कि बेटा 5 क्वेश्चंस इसके ऊपर लिखिए। सो हैव आइडियाज, सिलेक्ट फ्रॉम द बेस्ट, इन्वेंट प्रॉब्लम। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ क्रिएटिविटी। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ एक्टिविटीज के ऊपर क्विकली। क्रिएटिव एक्टिविटीज को आपने इनहेंस कैसे करना है, ठीक है। क्रिएटिव स्पेस, आप डांस, ड्रामा, म्यूजिक अपने सब्जेक्ट के साथ कोरिलेटेड कीजिए। इमेज टॉक, शो देम समथिंग और उनको बोलो हाउ आर यू फीलिंग, इमोजीज दिखा दीजिए, अलग अलग इमोजीज दिखाइए, कार्टून दिखाइए, उनको बोलो आप इसको क्या समझ रहे हैं, आप इसको इंटरप्रेट कीजिए। आप डम शर्ट्स कीजिए, आप चुप करके बैठ जाइए, आप मुंह बनाइए, आप मुंह फुला लीजिए, बच्चों को बोलिए मैं क्या कर रही हूँ। तो लेट चिल्ड्रन हैव एन इमेज टॉक। देन कम द स्कैम्पर। स्कैम्पर का यहाँ पे जो मतलब है सब्स्टिट्यूट एस, कंबाइन सी, ए का मतलब है अडेप्ट, एम का मतलब है मॉडिफाई, ई का मतलब है इलिमिनेट एंड आर का मतलब है रिवर्स। सो अगर आप सिंपल एग्जांपल दीजिए कि अगर बेटा एक्स एप्पल है और वाई ऑरेंज है, तो पहला आ गया सब्स्टिट्यूट। अगर आपको एक एप्पल एंड ऑरेंज खाना है और मैं एप्पल की जगह पे ऑरेंज आपको नहीं देती, बल्कि मैं ऑरेंज की जगह पे आपको एप्पल दे देती हूँ, हाउ वुड यू फील। आप इंग्लिश की क्लास में भी कर सकते हैं, आप मैथ्स में भी कर सकते हैं कि x plus y plus z is equal to 0, and if I say x plus x is equal to, children will say ma'am 3x। so आप बच्चों को ही कहिए कि चलो बेटा x और y को कंबाइन कर सकते हैं, नहीं सकते। Are they constants or are they variables? You can go on and on and on.
Then alternative ways of learning lesson. Storytelling से कीजिए बच्चों को. Storytelling is very famous. Wrong is right. आप 2 students को खड़े कर दीजिए, ठीक है, और एक बच्चे को आप कहिए कि आपने सही आंसर देना है और दूसरे को कहिए आपने गलत आंसर देना है, ठीक है. तो आप बच्चों को पूछिए कि एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, तो बच्चे बोलेंगे एक्स एक्सिस पर हमने एप्पल्स लिए. तो हमने, दूसरा बच्चा बोलेगा एक्स एक्सिस पर हमने ऑरेंजेस लिए. यू कैन आस्क अ रॉन्ग चाइल्ड, आपने ऑरेंज क्यों बोला. बच्चे की क्रिएटिविटी आएगी, बच्चा क्रिटिकली थिंक करेगा और बाकी बच्चों को ये भी लगेगा कि राइट और रॉन्ग दोनों ही हो सकते हैं. इनोवेशन. सो इनोवेशन आप जानते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड है, वर्चुअल रियलिटी है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको कहते हैं. Then project is based upon inquiry, analyze, investigate and questioning. Virtual reality क्या है? Learning 3D, virtual 3D है. Mountain top visits पे आप बच्चों को लेके जा सकते हैं आजकल कंप्यूटर के ऊपर, टेक्नोलॉजी के थ्रू. Then 2 is enough. इंग्लिश लिखा गया है, यहाँ पे आएगा 2 is enough, right? So अब हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं और एक रेक्टेंगल दे सकते हैं और हम बच्चों को कह सकते हैं कि आप बच्चों बताओ कि एक रेक्टेंगल में कितनी ट्रायंगल्स आ जाएंगी या एक ट्रायंगल के अंदर कितनी रेक्टेंगल्स आ जाएंगी. वो जो आपका होता था ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी, तो आप इसको 2 is enough आप बच्चों को सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, मैथ्स के साथ कर सकते हैं, आप फिजिक्स कर सकते हैं कि मेरे पास इतनी बॉल्स हैं, एक बड़ी बॉल के अंदर मैंने फिक्स करना है तो कितनी आएंगी. मैथ्स भी आ गया, वॉल्यूम आ गया उसमें. देन लेट देम फ्री, बच्चों को जाने दीजिए बाहर. देखो बच्चे क्या करते हैं. हर बच्चे से पूछो तुमने आज फ्री पीरियड में क्या किया, जो मैंने आपको फ्री पीरियड दिया था. गिव देम ब्रेक. क्लास में आके बच्चों को बोलिए बेटा आज आप क्या करना चाहते हो, मैंने नहीं पढ़ाना, मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ाने को. सो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज. सेव द लास्ट वर्ल्ड, ठीक है. तो सेव द लास्ट वर्ड का मतलब क्या है कि कोलैबोरेटिव एक्टिविटी कीजिए. सो आप बच्चों के साथ मिलकर एक टॉपिक दीजिए, उनको डिस्कस करने दीजिए, राइट करने दीजिए, सॉल्व करने दीजिए और फिर उनको बोलो कि बेटा एक लाइन में हमें मुझे जवाब देना है. तो सेव द लास्ट वर्ड आना चाहिए, WORD, नॉट UOLD. आई एम सॉरी, इट इज रॉन्गली टाइप्ड बाय मी. हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट अभी बताया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग. चेन गेम, आप चेन बनाते हैं, राइट, और इसमें आप वर्ड्स की चेन बना सकते. सो देन सर्च टू विन. सर्च टू विन में आप क्या करेंगे कि आप हंटिंग कर दीजिए. सर्च टू विन का मतलब है कि आप हिंट्स दे दीजिए. ग्रुप्स को बोलिए पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, पंजाबी में जिसको कहते हैं बुझारते डालना. तो सर्च टू विन, बुझारते डालो. देन डम शट्स आप जानते ही हैं, जिसको कि मूक अभिनय भी कहते हैं, माइंड भी कहते हैं, कि आप तब अपनी आंखें और मुंह बंद करके, ठीक है, आप डांस कर सकते हैं और बच्चों को क्रिटिकली पूछने के लिए कह सकते हैं. कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज हो गई. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं. नाउ वी विल टेक अप एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. तो अब स्किल्स भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. इफ यू नो दैट कि कम्युनिकेशन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 21st सेंचुरी स्किल्स में. पहले ध्यान से सुनिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताइए बच्चों को. बीइंग क्लियर, आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं. बी कंसाइज, टेल योरसेल्फ ओनली इन फ्यू वर्ड्स. बीइंग कॉन्फिडेंट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ. Be personable, right, and being patient. So communication की qualities बताइए. अब communication activities क्या हैं? Feelings are important. So बच्चे को किसी भी तरह से आप select feeling and express. उनको बोलो आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं. ये मैंने आपको 50 words दिए हैं, आप language use कर सकते हैं. आप इसमें लिखो how are you feeling? Happy, sad, right? Or anger, irritable, envious, envy, empathetic, partial. What are you wanting? Guide for the blindfold. Students को आप पेयर अप कीजिए, आंखों पर पट्टी बांध दीजिए और बच्चों को बोलिए, दूसरा बच्चा वर्ड्स यूज करेगा और अपने दूसरे फ्रेंड को गाइड करेगा. Go towards right, go towards left. The object is very big, the object is
small, the object is rectangle, the object is round, and etc. etc. So talk in pairs. So बच्चों को कोई भी टॉपिक दे दीजिए, आप उनको बोलिए आपस में आप बात करेंगे, और बात करके खड़े होकर एक बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे, दूसरे आंसर्स करेंगे. साइलेंट टॉक डे, नॉन वर्बल डे रखिए क्लास में. बच्चों को कम्युनिकेट करने की हैबिट डालिए. बोल के कम्युनिकेट नहीं होता, क्वाइट होकर भी हो जाता है. एंड देन ऑफ कोर्स द फेवरेट टॉपिक ऑफ द टीचर्स डे, लेट चिल्ड्रन टेक ओवर द क्लास वन डे. आप चुप करके बैठिए, बच्चों को पढ़ाने दीजिए. सो ICT लिटरेसी इंफॉर्मेशन, ये हमारा एक है. डिजिटल सिटीजनशिप, टेक्नोलॉजी लिटरेसी एंड इंफॉर्मेशन एंड लिटरेसी पढ़ाइए. तो मैं एक इसकी भी एक्टिविटीज आपको बता रही हूँ. डिजाइन अ ब्लॉग और वेबसाइट हम ऑलरेडी करवाते हैं. डिजाइन एन ऐप एंड नो हाउ टू सर्च इंजन कैसे यूज करना है. टीच, लर्न एंड कॉपी. सो आपको स्टेप्स लिख के एंड चिल्ड्रन कैन फॉलो अप दैट. Then comes flexibility and adaptability activities. How can we make our children flexible and adaptable to the given situations? Different use of household items, adaptability. अब हमने कोरोना में साइंस पढ़ाई बच्चों को. किचन में हमने दाल, चीनी, हल्दी, मैदा, बहुत कुछ हमने बच्चों को यूज करवाया, है ना. हमने कुकर को यूज किया, हमने किचन गार्डन को यूज किया. फ्लेक्सिबिलिटी, राइट. एडेप्टेबिलिटी. मेक अ न्यू गेम, प्रॉब्लम सॉल्विंग. बच्चों को बोलो कि अपनी पुरानी गेम को नई गेम के ढंग से बनाइए. टिप्पी टिप्पी टैप हम खेला करते थे, मैंने देखा बच्चे और ही खेलते हैं. मैंने देखा कि हम वो सटापू खेला करते थे, आजकल के बच्चे कुछ और ही कपड़ा सा नीचे बिछा के कलर सा उसके ऊपर कुछ खेला करते हैं. सो अडेप्टेबिलिटी जो है बच्चों को सिखाइए कि बेटा इसी गेम को किसी और तरह से भी आप खेल सकते हो. Then flipped classrooms, I have already told you, give the work to children in advance. Ask them to complete this work and then bring them into the class. Then अचानक क्लास में जाइए और चिट्स निकाल के कहिए, लो जी आज ये बच्चे ये काम करेंगे, और उनकी ग्रुपिंग कर दीजिए. लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लीडरशिप के लिए आपने बेसिकली एक्टिविटीज क्या करनी है, आप एक लीडर बना दीजिए क्विज का. क्विज टू लीड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कीजिए, नंबर गेम्स प्ले कीजिए, 2 से भले 4, टीम वर्क इज बेटर. ठीक है. स्टोरी टेलिंग कर दीजिए. या एक काम एक बच्चे को बोलिए कि बेटा तुम्हें आज ये पंखा साफ करना है, और फिर अगले दिन कहिए अब 4 बच्चों ने ये 1 मिनट पंखा साफ करना है. तो बोलो देखो अगर आप ग्रुप में करेंगे तो काम इजी हो जाएगा, अगर आप अकेले करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा. Leaders you admire, let children find out the leaders, write 10 sentences about them, why do they like them. So productivity and accountability activities. So these are certain activities which I have just mentioned here, right? इस साथ मैं आपको sorry just a moment, it has skipped. So productivity and accountability, read, ask and listen. ठीक है कि आप किसी का पहले सवाल पूछिए, फिर उसका जवाब सुनिए अपने ही टेक्स्ट में से. आप अपने ही सब इसका रिसर्च प्रोजेक्ट दीजिए बच्चों को. ठीक है. पैसे फॉर मोर, बच्चों को बताइए कि कम पैसों से ज्यादा पैसे कैसे कमाने हैं. अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोजेक्ट को फॉलो कीजिए कॉमर्स के अंदर. रीड. सो बच्चों को बोलिए कि आप पढ़िए, एक बच्चा पढ़िए, दूसरा बच्चा पढ़े, तीसरा बच्चा पढ़े, चौथा बच्चा ये बताए कि इसकी रीडिंग कैसे इंप्रूव हो सकती है. Then comes the accountability activities. Student accountability project. Make children accountable for them. आज तुमने डस्टर रखना है, चौक रखना है, हम सारा कुछ करते हैं क्लास में, बस उसको आपने एक फ्रेमवर्क में लेके आना है. Monitors and in charge. Ownership and the learning process. कि लो भी तुम इन 4 बच्चों के ओनर हो, तुमने इन 4 बच्चों का रिजल्ट इंप्रूव करना है. Do as you say. जो आप कहेंगे वही करेंगे. चलो आज मैं सुनती हूँ आप क्या कहेंगे, क्लास में आगे से वही होगा. अकाउंटेबिलिटी ऑन द सोशल वर्क ऑफ द क्लास. सोशल स्किल एक्टिविटीज इसमें है रिले कल्चर, फेस इट, सोशल. आप इसकी क्लिक ले सकते हैं और आप इसमें गूगल में ये एक्टिविटीज को सर्च कर सकते हैं. सो फैसिलिटेशन मेथड्स, बच्चों को एक्नॉलेज कैसे करना है. क्लास डिस्कशन कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, रोल प्ले कीजिए, गेम्स एंड साइमुलेशंस कीजिए, सिचुएशन एनालिसिस, केस स्टडी सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दी, डिबेट, स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग, डांस, क्विज, क्वेश्चनियर्स.
सो सीबीएसई ने 21st सेंचुरी स्किल्स को प्रमोट करने के लिए हमारी कुछ मैंडेटरी कंडीशंस रखी हुई हैं। आप जानते हैं आर्ट इंटीग्रेशन के बिना रोल नंबर डाउनलोड नहीं होता। मेकिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग एज मैंडेटरी पेडागोजी आपके लेसन प्लान का ये पार्ट होना चाहिए और आपको उन दोनों के मैनुअल्स ऑनलाइन मिलेंगे। हेरिटेज इंडिया क्विज आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे जीत रहे हैं। साइंस एग्जीबिशन सालों साल से चलती आ रही है, बहुत सारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं इसके थ्रू। आर्ट exhibition is again a part of art integration and artwork. CBSE storytelling competition has been added and Aryabhat Ganit challenge has been adding. Recently pandemic के during फिर आप जानते हैं स्किल एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो गई, क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग के प्रैक्टिस पेपर्स इंट्रोड्यूस हो गए, साइंस प्रमोशन टेस्ट हो रहा है, फिट इंडिया स्कूल एंड फिट स्कूल वीक बनाया गया और हमारा सारा का सारा फिजिकल एजुकेशन का जो कार्ड है रिपोर्ट कार्ड यही सारा चेंज हो गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत आप जानते हैं, इसी के अंतर्गत हमारे जो है मैत्री प्रोग्राम्स जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर चल रहे, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी दैट चंडीगढ़ इज कोलैबोरेटेड विद दादर नगर हवेली। सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज आर ऑन। सो 21st century skills does not mean just read and write, it is about learning, unlearn and relearn. ये हमें कहा था एल्विन टॉफलर ने। So I hope I'm able to give you the best and see this is what our children are looking forward to be everywhere, going out of gender sensitivity. They are engulfing inclusiveness into their lives. New policy says 21st century skills are not only limited to the able-bodied, good-looking children, healthy children. It's also applicable to differently abled children. Inclusivity is there, and then cross-gender is also there. So thank you so much, my friends. I hope I'm able to give you some insight into the 21st century skills around which our whole new education policy is centered. So let's have, yes, sir, please. मैम, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि हमको अपनी जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं या फिर हमारी जो टीचिंग प्रोसेसेस हैं उनको टाइम टू टाइम अपग्रेड और अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन उसको चेंज करना पड़ता है, राइट मैम? अब जैसे मैम अगर हम देखें लास्ट ईयर से सारा जो वर्ल्ड है मतलब वो एक तरह से ऑनलाइन पोर्टल पे आ चुका है। बिल्कुल। तो मैम अगर हम नो डाउट कि आपने जो भी बताया इट इज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी यूजफुल टू अस, लेकिन अगर मैम इसको हम ऑनलाइन वे से अगर सोचे कि हम टीचिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना, और जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन ही नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को हम ऑनलाइन तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो हमको इस बारे में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप कोई भी एक एग्जांपल पिक करो जो आज मैंने बताया, मैं उसका आई विल ट्राई एंड गिव यू सम काइंड ऑफ रिप्लाई टू दैट। आप कोई भी मुझे एग्जांपल दीजिए, आई विल ट्राई एंड कनेक्ट यू विद द ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल मैम अगर हम क्लास में बच्चों को सपोज क्रॉस क्वेश्चनिंग करवाते हैं कि आपसे मुझे लगता है कि इट इज नॉट सुटेबल। मैं आपको अभी बताती हूँ, आप ऐसा कीजिए कि आप किसी बच्चे को घर में ही बैठे बोलिए कि बेटा आपने 20 स्लिप्स बनानी है। अगर क्लास में 25 बच्चे, आपने 25 स्लिप्स बनानी है और 25 स्लिप्स बनाकर आपने 2 स्लिप्स हर बार निकालनी है। तो एक बच्चा दोनों स्लिप्स निकालेगा और वो कहेगा कि रोल नंबर 30 एंड रोल नंबर 10। तो आप दूसरे किसी बच्चे को बोलेंगे कि जो अभिजीत स्लिप्स निकाल रहा है आप उनकी ग्रुपिंग कीजिए बेटा। तो वो ग्रुपिंग की लिस्ट बन गई। अब आपके 2 लीडर्स हो गए, एक जो स्लिप निकाल रहा है जिसने बनाई, दूसरा जो कॉपी में लिख रहा है। लीडरशिप क्वालिटीज बीइंग डेवलप्ड। अब आपका एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। आप क्या कहेंगे कि 2 बच्चों को रैंडमली पिक कर लेंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि जी मैंने रोल नंबर 10 और रोल नंबर 16 वाला ग्रुप पिक कर लिया। आप उनको कहेंगे कि बेटा ऐसा है कि पहला पैराग्राफ जो इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर है, पहला पैराग्राफ रोहित आप पढ़ोगे
और मोहित आप उसमें से उसको क्वेश्चंस पूछो। सेकंड पैराग्राफ आप दूसरे बच्चों को दे दोगे, उससे पैराग्राफ देखो सर ये मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी जब हम ऑनलाइन जाएंगे। और जब आप 2 बच्चों को माइक्रो लेवल पर टेस्ट करेंगे और बाकी बच्चे सुनेंगे तो ये एक्टिविटी भी हो सकती है। ऑफ कोर्स 21st century skills है, please find the more innovative ways of conducting the activity. मैं कहती हूँ ऐसी एक्टिविटी ऑनलाइन is much easier because you are only listening to those 2 children. फिजिकल क्लास में तुम्हारी अटेंशन ही डाइवर्ट रहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, कोई बच्चा कहता है मैं पानी पीने जा रहा हूँ, कोई बच्चा कह रहा है कि जी मैं लेट आ रहा हूँ क्लास में। So I think as the 21st century skill teachers we can find much easier ways, much innovative ways. मुझे लगता है कि देखिए the very fact कि हम सभी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, हम में से इस वक्त 20 to 30% लोग इफेक्टिवली सुन रहे हैं जो मैं बात कर रही हूँ, ऐसा मेरा मानना है। 60 to 80% people maybe they are engaged, कोई खाना बना रहा है, किसी के घर में बच्चे हैं, कोई शोर है, किसी का माइक्रोफोन नहीं चल रहा, कनेक्टिविटी नहीं है। If I am able to give my best to 30% of the teaching people along with me, I think I've achieved my purpose. And the 70% of people who are logged in, they have had some part of it. So I think हमें realistic approach रखनी है, हमें achievable approach रखनी है, और most important हमने कहा adaptable and flexible. तो जैसे मैंने बताया है उस as it is जाने की बजाय थोड़ा सा उसको flexible, थोड़ा सा innovative हम उसको कर। बाकी सर I agree with you, socio economic environment, हम कैसे environment में है, वो public school है, private स्कूल है, कौन से एरिया में है, थोड़ा थोड़ा वो हमें अपना इनोवेटिव वे में चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आई एम आल्सो फ्रॉम द वेरी एफ्लुएंट स्कूल वेयर एवरीबॉडी हैज अ डिवाइस, नो, बट वी फाइंड द वेज हाउ टू मैनेज द थिंग्स। आई होप आई एम एबल टू गिव यू सम सॉल्यूशंस टू दिस क्वेश्चन। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? यस मैम, यस Ma'am, I would just like to ask your take on like the parents' review. Ma'am, because during this online session, what is generally happening is that parents do sit along with the kids. And if sometimes we try to add on such kind of activities in our lesson, we end up listening that parents, they complain that ki teacher the activity karati rehti hai, usne to padhaya nahi. So how to change that perspective of parents? Means what अगर मैं टीचर हूँ ना तो मैं एक काम कर सकती हूँ जो कि मैं कर देती हूँ। Orient your have one period of your parents one day and tell them we are the teachers, we are the educators, we know what to do, you please relax, you only contribute towards us, don't contribute towards your child. And teach them a lesson that if you will keep criticizing the teacher sitting across there, right, and your child will stop listening to us and then you will be in a trouble. Ma'am, exactly, that is what is happening. By the end of the year, yes, simple and the best way is you have to orient. मैं मानती हूँ प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ आप आज अगर हम आज पेरेंट्स से भी पूछने लगे ना कि भी where is the problem, we'll find out that 90% of the parents are very in a very problematic situation because children are not aware of how to use device. Children are getting attracted towards, you know, the other apps on the mobile instead of listening to what teacher is saying. Children are not wrong because children were not exposed to the devices. So let's see everything goes on well. In second year, and plus ma'am, the parents have a point of view कि आपने कितने चैप्टर खत्म करे, आप पिछले 1 week से you are just stuck to this chapter, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है। आपको बात बताऊं, see if this is a board class, then it is definitely challenging. उसमें आप notes दीजिए, उसमें आप notes दीजिए, आप स्कैन करके notes दीजिए और फ्लिप क्लासरूम बना दीजिए। उनको बोलो कि मैंने आज notes दे दिए, ये चैप्टर मैंने इससे लेके इस तक करना है, तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे। आप अपनी बुक खोल के रखना, अपने नोट्स डाउनलोड करके रखना, we'll talk about it and we don't have to leave any gap in between. गैप हमसे रहता है जहाँ पेरेंट इंटरवीन कर जाता है। Exactly. राइट, और पेरेंट बच्चे के सिर पे चढ़ा हुआ है
और ऊपर से टीचर भी चढ़ा हुआ है. So I think in the 21st century skills we also have to learn like teachers to accept the children across the board. कि वो बेचारा वहां पे बैठा क्या कर रहा है, थोड़ा सा उसको भी लेजिटिविटी हमें देनी. And then let's accept some kind of bias happening in between. वो आएगा. Sure, ma'am. Sure, ma'am. Sure. Either be ready for this and nor were children ready for that. But पता नहीं, मुझे लगता है with this coming year things will little bit settle down. Let's hope that. Yes, ma'am. We should definitely conduct one session with the parents also, ma'am. It's a request for the CBSE. We had it, like, you know, on Diksha portal, there were the CCT examinations were held and children were doing very bad. So we were asked, like, why are children doing bad? So the solution, what I found was, let me ask parents. So when we did this, we could manage to do the offline training for children, parents. So we did not tell them that we are going to talk about the critical thinking. We just invited parents, telling them we are going to have a psychological counseling during the pandemic stress of children on mind. 100% attendance of the parents were there. So we started with them. What problems are you facing? So we got 40 questions. We told them, you know, the outcome of this is that children are not telling what's happening on the app. Are you checking on what's happening on the app? Let's get together and work for the children. And you won't believe it, out of 100% parents attendance, about 95% of the parents didn't know what we were talking about because children had not conveyed to them. And this is about class 8, 9 and 10 students. Oh my God. And about 70% of the children were telling lies to them if something like that is happening. So when we opened their data and we showed it to parents that your child in the month of May last year had attempted this question, and in the month of January and in the month of February, he just stopped doing it, parents could even. We had the results for their own life. So we did survey with the 5 parents and we asked them to find out what happened. The parents only said our children didn't feel like attempting because they were not intrinsically motivated. So we decided, let's keep sending them online certification of thumbs up for children to give intrinsic motivation. So we told parents, we will send also the certification. So if tomorrow some kind of examination is happening, the internal grading will happen on the certification to the parents and children. You have to keep thinking ahead of people, what we think. So I think being the good teachers, we will keep doing some work, and we all have challenges which we keep on surmounting them. So I'm sure there's a lot of bunch of teachers here. So any suggestions, any innovative method you have, I will also like to learn from you if you have any. So we say goodbye. It's time to say goodbye. We are already off 20 minutes more. So thank you so much, Yori Chandigarh, for connecting me to the energetic educators. So please keep working hard on 21st century skills, and this is how we can give the best to our nation. So thank you, Jai Hind, and keep safe till the time comes. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.